So today I'm going to start JavaScript playlist और मैं आपको JavaScript की एक एक concept को I will be explaining in that much depth as much as you need so that you will be able to do all your tasks even in the industry if you have been placed in some company or you're just going to start your career or even you're just a college student. Just be with me, guys. I will help you out in coding as well, and I'll take you as we go forward so that we will be covering each and every topic together. We will not even miss a single concept. So, here I'm taking support of MDN official, you know, JavaScript and documentation, and मैं इसमें सब कुछ डिस्कस करूँगी each and every topic. Okay, I will be focusing on points which are really important, like API mappings and all, client side web APIs, how do we map them, and everything in depth and detail in this tutorial. So guys, just show your faithfulness towards this playlist and come and learn daily. I'll be uploading the video each day, I promise this, and I'll be covering each and every topic inside JavaScript. And with you guys, I'll be really, brushing up my knowledge as well. So I'm also a learner with you all. Let's learn together and just start the journey. So basically, what is JavaScript? If we are getting something to know about JavaScript, like what comes to our mind, it should be like, suppose a website. What is a website? First of all, a website is, we are having a website which is built up of HTML. Definitely every website has an HTML code. If you do command option I, then you'll be seeing it, in the elements section over here. You will be seeing the all the HTML body, scripted div, everything, every tag of HTML will be shown here. Like body, if I select whole page gets selected. Okay, now the div part, if I select, then it is all written, everything is written in such a minute and nice way, and we can see the padding, border, everything. And if you got to see the margin, border, padding, how much has been used, it is all being visible to us. So the CSS and HTML part is not covering in this section. uh, I hope that you all know that already because you are here in JavaScript playlist. So guys, let's get started. So what was my intention to open the network tab and show you the elements was that HTML is having the code which helps us to get structured website. Suppose if I open a simple dictionary website, so you see there is a lot of things you can see on a single page. So some are clickable, some are text. So how do we, click on something and some other page opens? There is definitely some events getting triggered, right? How it is handled, and that is what is handled through JavaScript. And JavaScript does not only like closes its work over here, but it is a vast topic. It is having a lot many of methods which will help you get started, make a wonderful website. So let's get started. JavaScript is a lightweight interpreted or just-in-time compiled programming language with first-class function. So definitely it is a lightweight because we are using it to build our website, and not only we, but great big companies like Facebook and every other companies, name it, the React which is using, any company which is using React, certainly React is a framework built on JavaScript, which we will also learn together in the coming days. So let's focus here. So what do we mean by interpreted language? Let's go a little bit slow, and you can based on your learning experience or based on your preference, you can just slow down the video, and or if I'm too slow, then you can just make it fast. You have the options. You got it. And interpreted language, what is it? हम अगर समझे कि क्या है interpreted language,
क्या होता है, व्हाट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब वी हैव टू नो, ओके, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू लर्न जावास्क्रिप्ट, इट्स नॉट something that you just start coding that script tag and then you just start giving the function to the button. No, you need to understand the in-depth function. What is it, why we are learning it, what is the need of it? Okay, we got it, why are we learning JavaScript, but can you tell me what is the interpreted language? So it is something which the when uh, the instructions gets executed directly without earlier programming, earlier compiling the program into machine language. It is directly getting executed. Okay, the instruction is directly getting executed before the compilation. Compiled programming language with first class functions. What do we mean by first class functions? So here we get the link, and first class function is the programming language is said to have first class function when functions in that language are treated like any other variable. Okay, are we getting this? Not only just reading it, are we getting this? So guys, यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं इससे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोला जा रहा है फर्स्ट क्लास फंक्शन तब बोला जाता है जब उस फंक्शन में कोई इन दैट लैंग्वेज, किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में उससे किसी वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इन सच अ लैंग्वेज अ फंक्शन कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू द अदर फंक्शन. मतलब आप समझ रहे हैं, एक फंक्शन हमने बना लिया, अब उस फंक्शन को हम एज अ वेरिएबल दूसरे फंक्शन में यूज़ कर पा रहे हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन. एंड ये हमें जावास्क्रिप्ट हमें क्या देती है, हमें ये फैसिलिटी देती है. तो वी विल ऑल्सो सी एग्जाम्पल असाइनिंग अ फंक्शन टू वेरिएबल. देखो, कॉन्स्ट फू, अब ये एक एरो फंक्शन है, ये हम आगे पढ़ेंगे. इट इज़ सिमिलर लाइक यू कैन अंडरस्टैंड इट एज this foo is the function name. What is function? Okay, let me not go in that much depth right now because it might bounce through our mind, but just in a normal way, if I try to make you understand, then function is something which lets you do which lets you save your time. It prevents you from writing your piece of code again and again. It saves your time. For a particular thing, you can just write a function, like suppose you have to find out the sum of students marks in a particular class. You just write the function and you got it for every subject. Okay, you don't need to just calculate it or twice thrice for every subject. No, through the function we can just pass the arguments and we can get the work done. And we let's come back to the first page, then we will keep on learning what is function in depth in the coming classes. So here what we understood is that JS is a lightweight interpreted or just-in-time compiled programming language with first-class functions. While it is most well known as the scripting language for web pages, many non-browser environments also use it, such as Node.js, Apache, CouchDB, and Acrobat. You see, these many, these are also using JavaScript. In fact, if you want to learn Node.js for backend in the future, you need to have a command on JavaScript, a grip on JavaScript. Then only you will be having a great career in your backend development if you need to. So let's get back. JavaScript क्या है? JavaScript को अगर हम in short देखें तो हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ से ये सीखा है कि जावास्क्रिप्ट इन शॉर्ट एक ऐसा लाइट वेट और मतलब बहुत ही ईजी टू गेट फॉर अ फंक्शन, मतलब गेट योर वर्क डन. और उससे मतलब वो ऐसा है कि जब आप कोई इंस्ट्रक्शन उसे दे रहे हो देन इट गेट्स इट डन बिफोर कंपाइलिंग इट. ओके, सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ रियली ऑसम अबाउट जावास्क्रिप्ट. सो जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोटोटाइप बेस्ड मल्टी पैराडिगम सिंगल थ्रेडेड डायनेमिक लैंग्वेज है. ये एक लाइन में बहुत सारी बातें ऐसी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए. जावास्क्रिप्ट एक प्रोटोटाइप बेस्ड मल्टी पैराडिगम सिंगल थ्रेडेड डायनेमिक लैंग्वेज है. इसका मतलब ये है कि
प्रोटोटाइप बेस्ड हम देखेंगे क्या होता है। प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है कि ऐसा स्टाइल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसके अंदर क्लासेस एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं है, बल्कि डिराइव किया जा रहा है दूसरे प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके, मेथड्स को ऐड करके, इंस्टेंस ऑफ अनदर क्लास, और लेस फ्रिक्वेंटली एडिंग देम टू द एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी हैव टू गेट इट क्लियर what is it saying. ठीक है, so and it is having the instance of class and multi-paradigm. It's not single threaded. What do you mean by single threaded and what do you mean by dynamic language? Let's get started through it. सो थ्रेड इन कंप्यूटर साइंस, थ्रेड का क्या मतलब होता है कंप्यूटर साइंस में? थ्रेड इन कंप्यूटर साइंस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ रनिंग मल्टीपल टास्क ऑन प्रोग्राम एट द सेम टाइम. ईच यूनिट केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोड इज कॉल्ड अ थ्रेड. थ्रेड जो है वो कंप्यूटर साइंस में एग्जीक्यूशन ऑफ रनिंग मल्टीपल टास्क, जो हमारा मल्टीपल टास्क रन करता है ना प्रोग्राम्स का, लाइक हम कोई प्रोग्राम्स लिखते हैं देन उसमें मल्टीपल टास्क रन करता है. ईच यूनिट इज़ केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ कोड कॉल्ड थ्रेड. हर यूनिट जो है वो एक कोड को एग्जीक्यूट करने के केपेबल होता है. ओके, इट इज़ केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द एनी थ्रेड. इट इज़ लाइक सेम टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स अगर आपने ऑन कर दिया, सो हाउ विल इट मैनेज. हाँ, तो वो चीज़ होता है थ्रेड. तो जो मेन थ्रेड होता है वो मतलब यूज़ होता है ब्राउज़र के द्वारा कि वो हैंडल कर सके दूसरे इवेंट्स को और रेंडर कर सके, पेंट कर सके डिस्प्ले को, कि जो भी मेरा मेजॉरिटी कोड आ रहा है उसको हम वेब पेज में दिखा पाएँ. क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो एक थ्रेड में हो रहा है, तो उससे क्या होता है, स्लो हो जाता है वेबसाइट, या फिर आपका जो ऐप स्क्रिप्ट है वो भी स्लो हो जाता है, और उसके वजह से पूरे की पूरी ब्राउज़र स्लो हो जाती है. एंड दिस बिकम्स द वर्स्ट सिचुएशन. अगर कोई साइट या ऐप स्क्रिप्ट इस तरह के इन्फिनाइट लूप में जाता है तो फिर पूरा का पूरा ब्राउज़र हैंग हो जाता है. कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपका पूरा का पूरा ब्राउज़र हैंग हो गया एंड इट इज़ नॉट वर्किंग, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ गेटिंग डन. लेकिन अब आप बोलोगे कि तो फिर तो जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट दैट मच गुड बिकॉज वो सिंगल थ्रेडेड है. बट अगर हम आगे देखें तो however modern JavaScript offers way to create different additional threads, each executing independently while possibly communicating between one another. तो अगर हम देखें तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो है वो हमें बहुत सारे वेज देता है, बहुत सारे वेज प्रोवाइड कराता है कि हम क्रिएट कर सके एडिशनल थ्रेड्स. बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स हम क्रिएट कर सके, नॉट अ सिंगल थ्रेड विच विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द ब्राउज़र, बट इट offers us the ways to create additional threads. हम additional thread भी बना सकते हैं और हर एक एग्जीक्यूटिंग इंडिपेंडेंटली, हर एक थ्रेड इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होगी, मतलब अलग से हर एक थ्रेड एग्जीक्यूट होगी वाइल पॉसिबली कम्युनिकेटिंग बिटवीन वन अनदर. वो आपस में बात भी कर पाएंगे वो थ्रेड और इंडिपेंडेंटली रन भी करेगा. मतलब एक टास्क के प्रोसेस के थ्रेड की वजह से दूसरा प्रोसेस अफेक्ट नहीं होगा. एंड दे कैन इवन कम्युनिकेट इफ़ वी वांट अ पर्टिकुलर टास्क इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड टास्क, देन दे कैन कम्युनिकेट. JavaScript gives this flexibility. This is done using technologies such as web workers, okay, which we will learn later, which can be used to spin off a subprogram which runs concurrently with the main thread in the thread of its own. So हम उसके मदद से क्या कर सकते हैं कि कोई भी सब प्रोग्राम को हम रन करा सकते हैं कंकरेंटली जब मेन थ्रेड वर्क कर रहा है उस टाइम पे. तो ये हमें क्या करता है, दिस अलाउज slow, complex or long running tasks to be executed independently of the main thread, preserving the overall performance of the site or app as well as that of the overall browser. This also allows individuals to take advantage of modern multi-core processes. तो ये हमें क्या करता है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है कि हम मतलब बहुत सारे प्रोसेस को, मतलब मान लो अगर कोई छोटा छोटा टास्क है मेरे पास, ठीक है,
तो हम उस टास्क को भी आराम से कर सकते हैं. Okay, if you want to just understand, then just understand, like if I'm having a task P1 and P1 and P2, so P1 is having more weightage. Okay, so P1 is having more weightage and P2 is having less weightage, but we will be learning from, we will be learning from the methods from JavaScript, that how can we align that P2 task, which is way smaller than P1, to get executed and in no time and without distracting the main work of the P1. Okay, this is how we can do through web worker or service workers. So a special type of worker called a service worker can be created, which can be left behind a site. देख रहे हो, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक स्पेशल काइंड ऑफ वर्कर क्रिएट कर सकते हैं और उसको मतलब क्या कर सकते हैं कि साइट के पीछे रख सकते हैं यूज़र के परमिशन के थ्रू. इट विल, मतलब आपने बहुत बार देखा होगा, आप जो भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो वो आपको परमिशन मांगता है. तो यूज़र जब उसको परमिशन देता है ना, तो उसको थोड़ा फास्ट करने में हेल्प करता है, नथिंग एल्स. अब परमिशन से आप ये मत समझिएगा कि आपको हर चीज़ का परमिशन दे देना. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. सपोज इट विल आस्क यू टू कैशिंग इनेबल करने बोल रहा है. सो दैट एंड ऑल माइट बी helping you to make your website faster, but it is not service worker. No, we will learn that later. Let's learn that later. This is used to create sites capable of notifying the user. See, notify करने में भी help करता है when things happen while they are not actively engaged within the site. सो आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स जो आप ओपन कर रखे हो एंड आपने उसको नोटिफिकेशन का एक्सेस दे दिया है अगर वो आपसे परमिशन मांग रहे हैं, एंड आप वो वेबसाइट खोल के नहीं भी रखे हो अपने लैपटॉप में, बट आपका लैपटॉप ऑन है, तो यू विल गेट दैट नोटिफिकेशन. और ये नोटिफिकेशन कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये आपके बैकग्राउंड में काम कर रहा है सर्विस वर्कर के थ्रू. अब ये डिटेल में सर्विस वर्कर क्या है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि वो आपके वेबसाइट को जब कोई यूज़र ओपन नहीं भी किया है, तब भी वो आपके वेबसाइट को उसके लैपटॉप या कंप्यूटर पे एक्टिव रख सकता है. इट इज़ दैट मच पोटेंशियल. सो इससे क्या होगा कि सपोज जस्ट लाइक यूट्यूब नोटिफिकेशन, इफ यू टेक, जब मैं कोई न्यू वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, राइट? इट इज़ सिमिलर वे यू कैन से फॉर द वेब एप्स, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक यूट्यूब नोटिफिकेशन, बिकॉज यूट्यूब इज़ एन ऐप एंड दिस इज़ अ वेब ऐप. वेब ऐप से मतलब आप वेबसाइट समझो कि देखो, अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ, देन यहाँ पे हमारा एक होता है एप्लीकेशन के सपोज command option I in MacBook and control shift I in your Windows. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको ये डबल एरो से यहाँ पे एक डबल एरो है, इसको क्लिक करने पे हमको क्या मिलता है? लाइट हाउस. ठीक है, अगर हम लाइट हाउस पे क्लिक करते हैं ना, तो हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये जब हम एनालाइज करेंगे ना और पेज को लोड करेंगे, देन हमें एक रिपोर्ट मिलता है कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है, इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, इसका सर्विस वर्कर्स कितना अच्छा काम कर रहा है, एंड व्हाट आर द थिंग्स विच इज़ गुड फॉर योर ऐप. So it gives us an idea. We will work and we will learn about all of that. So such a notifying user, they have received a new email through they are not currently logged in into their mail service. तो आप देख रहे हो बिना लॉग इन के भी आपको नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है. हाउ इफेक्टिव इट इज़ दैट यू डोंट नीड टू लॉग इन अगेन एंड अगेन इन टू दैट वेबसाइट टू गेट टू नो द इंफॉर्मेशन व्हाट दे हैव एडेड. ठीक है, ओवरऑल इट कैन बी ऑब्जर्व दीज थ्रेड्स विद इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल. अगर हम देखेंगे तो ये थ्रेड्स जो है हमारे OS के लिए के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारा OS जो है वो OS इज़ अ हार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो हमारे कंप्यूटर में लाइफ ही नहीं है फिर, राइट? सो OS
के लिए वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओएस जो है आपका, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है मैं बताती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे टास्क्स होते हैं, राइट। अगर आप टास्क को ऐसे समझ लो कि अगर आपने कोई ऐप ओपन किया, कोई वेबसाइट ओपन की है, ठीक है, सपोज आपने मल्टीमीडिया भी ओपन कर लिया, म्यूज़िक ओपन कर लिया, पेंट ओपन कर लिया, एंड एट द सेम टाइम यू आर यूजिंग VS कोड एंड मैनी अदर ऐप्स। सो ओएस क्या करता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, सपोज़ मेरे वेब ब्राउज़र जिसको मैंने ओपन किया है उसको वो मेन थ्रेड बनाएगा, एंड फिर जिस पे मैं स्विच कर रही हूँ वो उसको सेकेंड थ्रेड बनाएगा। मतलब इट विल क्रिएट अ थ्रेड टू मिनिमाइज द स्विच, द लोड। दे हेल्प मिनिमाइज द context switching time, enables more efficient communication, allows further user of microprocessor architecture। ठीक है, तो हम इस पे आगे आते हैं। ओके, so JavaScript dynamic capability include runtime, object construction, variable parameter list, function variables, dynamic script creation। या हमें ये बता रहा है कि JavaScript की जो डायनेमिक कैपेबिलिटीज़ जो हमने ऊपर पढ़ा था कि उसमें डायनेमिक कैपेबिलिटीज़ भी हमें मिलता है, तो उसमें हमें क्या क्या मिलता है। उसमें हमें कंस्ट्रक्शन मिलता है, कंस्ट्रक्टर मिलता है, रन टाइम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन, वेरिएबल पैरामीटर लिस्ट, फंक्शन वेरिएबल्स। अभी ये सब नाम सुनकर आप लोग डरना मत, क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा MDN डॉक, इसीलिए आई एम नॉट रशिंग फॉरवर्ड, और मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ सो डैट आपको ना एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना उससे पूरा पढ़ डाला, एंड नॉट जस्ट थ्योरी। बिलीव मी गाइज, वी विल डू द practical too for each and every concept we learn। सो जावास्क्रिप्ट डायनेमिक कैपेबिलिटीज़ क्या करता है, इंक्लूड करता है रन टाइम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन, वेरिएबल, मतलब रन टाइम पे आपका कोई ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। वेरिएबल पैरामीटर लिस्ट, फंक्शन वेरिएबल्स, डायनेमिक स्क्रिप्ट क्रिएशन वाया eval, ठीक है। eval क्या होता है, eval भी एक फंक्शन है जो कि इवेलुएट करता है JS कोड को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू भी, मतलब फॉर इन ऑब्जेक्ट यूटिलिटीज़ एंड सोर्स रिकवरी, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस जो है वो स्टोर करते हैं अपने सोर्स टेक्स्ट को, एंड वो सारे रिट्राइव कर सकते हैं टू स्ट्रिंग फंक्शन। दिस इज सेक्शन इज डेडिकेटेड टू JS लैंग्वेज itself and not the parts that are specific to web pages or other host environments. For information about APIs that are specific to web pages, please see web API and DOM। सो डेफिनेटली हमें APIs की भी नॉलेज होनी चाहिए। API अगर हम जाने तो API क्या होता है, API के बारे में हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, बट अभी मैं बता दूं कि वो एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, उसका फुल फॉर्म है ये। वो क्या होता है कि वो एक्चुअली हमें हेल्प करता है कि आप सर्वर के साथ कैसे कांटेक्ट करते हैं। आप API के थ्रू ही सर्वर से कुछ डेटा फेच कर पाते हैं। अगर कोई सर्वर, सपोज़ बहुत बड़ा सर्वर है गूगल का, जिससे हम 1 मिनट के अंदर अगर हम कुछ भी गूगल सर्च करते हैं, देन वी विल गेट एग्जैक्टली न्यू वर्ड इन कंप्यूटर साइंस। अगर हम ये फेच करते, जैसे ही हमने एंटर मारा तो ये रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर पे गूगल के, एंड वो हमें हमारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमें वो भेज रहे हैं हमारा रिस्पॉन्स। अगर हम इसे फिर से सर्च करें तो आप ये देखोगे कि सर्च की API हिट हो रही है, एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है इतना सारा डेटा जो कि हमें गूगल से आ रहा है। सो मच थिंग्स, दिस इज सच हिस्ट्री, आई हैव एंटर्ड दिस API हैज़ बिन हिट, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये सब चीज़, हम समझेंगे कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आप इतना समझ लो कि हम ये API हिट कर रहे हैं, ये 200 माइनिंग की सक्सेस है, एंड हमें डेटा मिल गया है। सो हमें ये डेटा मिला कैसे, तो गूगल के सर्वर पे हम रिक्वेस्ट भेजे इसलिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वी विल लर्न मोर अबाउट JS and we will just go through line by line every topic, and believe me,
we will be just enjoying the each and every tutorials. अभी हमने बिगनर्स का JS क्या होता है ये पढ़ा है, and looking to become a front-end developer, we have put together a course that includes all essential information you need to work towards your goal. So let's get started for it, and then we will just ensure all of this. Okay, so definitely we will just move with JS, and here we see JS first steps, JS building blocks, JS, everything is here. So we will just start with everything. JS first steps से हम स्टार्ट करेंगे. अगर हम देखें तो व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट हम सीख लिए हैं, हम उससे क्या कर सकते हैं ये भी सीख लिए हैं. फर्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ जावास्क्रिप्ट, आफ्टर दैट डिस्कस सम की ब्लॉक्स इन डिटेल सच एज वेरिएबल, नंबर, एरेज, ये सब हम अभी सीखने वाले हैं आने वाले लेक्चर में. बने रहे मेरे साथ, एंड वी विल जस्ट डू ईच एंड एवरी टॉपिक इन डेप्थ. लेट्स गेट गोइंग.